हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो एंड ग्रेजुअली स्लोली एंड स्लोली you people are building your relationship with physics in a beautiful way, and that you must be doing by solving more number of questions, by trying to take a grasp at concept again by solving more number of questions, है ना? So physics सीखने का एक ही दवा है, that is keep on doing more number of questions. डन है? सिर्फ काउंटिंग के लिए नहीं, बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली. ठीक है, सो लेट अस फॉर नाउ प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन गेटिंग आस्क्ड बाय आशीष. सो thank you, Ashish, for asking this one. Let's start with the question. There are two particles, 1 and 2, and they start simultaneously. Simultaneously means at the same time. So while you read physics, एक चीज और जरूरी है कि थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, है ना? इतनी आनी चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन को सही से समझ सके, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है. ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. सो particles are moving along positive x direction, meaning they are in a rectilinear motion. Done है? Initial velocity of both the particle is zero. They are starting from rest. The acceleration of two particles depend on their displacement as shown in the figure. So a versus x का ग्राफ दिया है. नाउ ए वर्सेस एक्स के ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है? बिफोर डाइविंग इनटू एबीसी क्या कह रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस वन कि इससे हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. सो व्हेनेवर वी आर गिवन ग्राफ इन मोशन, वी आर इंटरेस्टेड इन टू थिंग्स, देयर स्लोप एंड देयर एरिया अंडर कर्व. ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं स्लोप की बात करूं तो डी ए बाई डी एक्स ऐसा कोई टर्म हमने पढ़ा नहीं है, सो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट. इफ वी टॉक अबाउट एरिया, दिस इज ए डी एक्स. ये सिग्निफिकेंट है क्या? देखने से लग रहा है नहीं, बट है एक्चुअली, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन को लिखते हैं डीवी बाई डी टी. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं ना? देखो, इसको अगर आप क्लब करोगे तो क्या डी एक्स बाई डी टी विल बिकम वी, सो दिस इज वी डीवी बाई डी एक्स. नाउ ए और डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डीवी. So if you calculate area under curve, so integration of a dx will be equal to integration of v dv. So if you are taking initial and final position, then at initial point, let's say velocity is vi, at any final point it is vf. So this will become vf ka square minus vi ka square by 2. So this is what this area under curve is going to give us. Done it? Now let's dive into options. First क्या कह रहा है? Particle 1 and 2 take time t1 and t2 respectively for their displacement to become x naught. Find t2 by t1. ये तो सिंपल कैलकुलेशन है कि x नॉट को क्रॉस करने में फर्स्ट पार्टिकल को t1 टाइम लगा, सेकंड को t2 लगा, दोनों का रेशियो निकालना है. अब देखो, if you use second equation of motion, s is equal to x is equal to क्या होगा? x final is equal to x initial plus u I t plus half a t square. ठीक है, so for first particle if you put things in here, final position is x naught, initial is origin, they are starting from origin, initial velocity 0, half acceleration from 0 to x naught, it is 2a, and that is t1 ka square. So 2 will get cancelled and t1 will be equal to x naught by a naught का रूट अंडर. ठीक है, सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्टिकल इफ यू वांट टू यूज, तो आप क्या करोगे? एक्स एफ क्या लिखोगे? एक्स नॉट ही है, एक्स आई जीरो ही है, यू आई जीरो ही है, हाफ एक्सेलरेशन इज ए नॉट टी टू का स्क्वायर. सो यहाँ से अगर आप टी टू लिखते हो, यू विल बी राइटिंग 2x नॉट बाई ए नॉट रूट अंडर. सो यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हो ना t2 by t1 को, तो you can say this is root 2. So basically second particle is taking more time to reach at x naught than first particle. Done it? Sorted. So first का आंसर तो root 2 मिला, that is sorted. Second तक पहुंचते हैं. Which particle will cover 2x naught distance in least time? Which particle will cross the point this with greater speed? Done it? Let's dive into a graph for this b thing. ठीक है, सो इसको हम टोटली ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखो, अगर हमसे ये पूछ रहा है कि 2x नॉट क्रॉस करेगा जब वो, तो बेसिकली यहाँ पे भी कोई 2x नॉट बना लो, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? पहली चीज तो ये पूछा है. तो अगर हम एरिया अंडर कर्व निकाल लेना 2x नॉट तक, वी कैन कंपेयर देयर स्पीड, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एरिया अंडर कर्व किसके बराबर होगा? वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर बाई 2. सो बोथ for both particles, if we are taking initial point this, then vi will become 0 and final point equal to position of 2x naught, then we will get final velocity of both the particles when they are crossing 2x naught. Then we can compare कि speed में क्या changes है.
ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट दिस एरिया। इस एरिया को अगर आप निकालो तो कितना आएगा बताओ, ये एरिया कितना होगा? हाइट इज 2a0 एंड बेस इज x0, सो दिस इज 2a0 x0, दिस इज बेस इज x0 एंड हाइट इज a0, सो दिस इज दिस टोटल एरिया 3a0 x0, और ये किसके बराबर होगा? vf स्क्वायर बाई 2, क्योंकि vi तो 0 है। सो vf फॉर फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू हाउ मच? 6a0 x0 root under. So when first particle is crossing x equal to 2x naught, its speed is this. यहाँ पे आप एरिया निकालो, ऐसा लग रहा है सेम आएगा। सो यहाँ पे a naught x naught is this one and this is also how much? 2 a naught into x naught, ठीक है। सो ओवरऑल एरिया here also it is 3 a naught x naught, so this is also equal to vf square by 2। कहने का मतलब ये है कि जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है दोनों के लिए सेम आ रही है। कहने का मतलब ये है कि बोथ पार्टिकल विल क्रॉस x is equal to 2x naught with the same speed, so they are going to cross it with the same speed। डन है। सो दैट आंसर वी हैव ऑलरेडी मेड। ये वाला क्या लिखोगे इसके लिए? ग्रेटर स्पीड क्या होगा? नहीं, किसी का ग्रेटर नहीं होगा, बोथ आर गोइंग टू क्रॉस विद द सेम स्पीड। नाउ थिंग इज विच विल कवर डिस्टेंस इन लेस टाइम। नाउ टाइम का फैक्टर आ रहा है, अब टाइम को हम कैसे बैटल कर सकते हैं यहाँ पे? तो एक काम करो, वीटी कर्व बनाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब ये 2x नॉट को क्रॉस कर रहा है ना, 2x नॉट को व्हेन दे आर क्रॉसिंग, व्हाट इज द थिंग? बोथ हैव अ सेम वेलोसिटी and time we have to compare. So if we are able to draw VT curve, we can, I mean we can check this। जैसे मैं दिखाती हूँ, अगर सारी चीजें मैं बोल दूँ तो शायद तुम्हें समझ में नहीं आएगा। So let me draw it for the first particle। अगर मैं draw करूँ VT curve, तो VT curve का slope क्या देता है? Acceleration। So for first particle 0 से x नॉट टाइम तक क्रॉस करने में कितना टाइम लिया था? t1। So 0 से t1 टाइम तक what will be the slope of VT curve? It should be 2a naught। सो कुछ मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, इट इज दिस। एंड फ्रॉम t1 बियॉन्ड इट्स एक्सेलरेशन इज a नॉट, सो स्लोप विल डिक्रीज, इसलिए मैंने कुछ ऐसा बनाया। देखो इसको अगर बियॉन्ड एक्सटेंड करते हो ना, तो इट विल मेक लेसर अमाउंट ऑफ एंगल विद द एक्स एक्सिस देन दिस वन, सो स्लोप इज डिक्रीजिंग बिकॉज इसके स्लोप का वैल्यू 2a नॉट है, लेटर ऑन इट इज a नॉट, सो इट इज लाइक दिस। This is time t1। Now let's draw the same graph, same sort of graph for the second particle in the same कोऑर्डिनेट थिंग, ठीक है। सो इसी में मैं बनाने जा रही हूँ। सेकेंड पार्टिकल की अब बात करो, सेकेंड पार्टिकल का अप टू द टाइम इट इज क्रॉसिंग एक्स नॉट, दैट इज अप टू टाइम t2, इट्स एक्सेलरेशन इज a नॉट, सो इट्स इनिशियल स्लोप ऑफ लाइन विल बी सेम एज दिस वन, राइट। सो उससे पैरेलल आप बना लो ऐसा कुछ। और कितने टाइम तक? t2 टाइम बड़ा था दिखने में, हमने कैलकुलेट भी किया था, सो t2 वाज ग्रेटर। अब यहाँ पे आ जाओ आप, व्हाट एल्स यू कैन सी? ओके, आफ्टर बियॉन्ड t2 क्या दिख रहा है तुम्हें? बियॉन्ड t2 इट्स एक्सेलरेशन इज 2a नॉट, सो देन इट्स स्लोप विल बी पैरेलल टू दिस वन, सो उसके पैरेलल आप बना लो कुछ ऐसे। सो दिस विल गो लाइक दिस एंड दिस विल गो लाइक दिस। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन गेटिंग आस्क्ड? अगर आपको क्वेश्चन ध्यान से याद हो तो देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है विच पार्टिकल विल कवर 2x नॉट डिस्टेंस इन लेस टाइम। हमें पता है व्हेन दे आर क्रॉसिंग 2x नॉट देयर वेलोसिटी इज सेम, सो वेलोसिटी से ऐसा कुछ एक लाइन बनाओ ऐसा। सो इफ दिस इज द लाइन ऑफ वेलोसिटी, सपोज कर लो दिस इज द वीएफ वाला लाइन, जो वीएफ हमने कहाँ निकाला था? यहाँ पे निकाला है, रूट अंडर 6a0 x0। इफ दिस इज रूट अंडर 6a0 x0, then I mean first particle is crossing this velocity at this time and second particle is crossing this velocity with this velocity at this time. So which will cross x equal to 2x not before? पार्टिकल 1। पार्टिकल 2 विल क्रॉस इट लेटर ऑन, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा? विच पार्टिकल विल कवर दिस इन लेस टाइम? सो पार्टिकल 1, यू विल आंसर इट लाइक दिस। नाउ सी ऑप्शन में आप जाओ, क्या कह रहा है? द टू पार्टिकल्स हैव सेम स्पीड एट अ सर्टेन टाइम आफ्टर द स्टार्ट, कैलकुलेट दिस कॉमन स्पीड इन टर्म्स ऑफ ए नॉट एंड एक्स नॉट। आप अब ध्यान से देखो ग्राफ को, मैंने ग्राफ यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आया है जहां पे बोथ आर शेयरिंग द सेम वेलोसिटी, है ना, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस, राइट। इसी को निकालना है ना।
The two part calculate this common speed. Yes, we have to calculate this common speed. तो निकालो, कैसे निकालोगे? अगेन अ प्ले ऑफ ज्योमेट्री. अगर आप ध्यान से देखो ना इसको, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम, राइट? और पैरेललोग्राम के लिए ये वाला साइड पैरेलल एंड इक्वल, दिस साइड पैरेलल एंड इक्वल. एंड इफ यू आर कॉलिंग इट पैरेललोग्राम, अगर आप इसको पैरेललोग्राम बुला रहे हो, तो आप देख सकते हो ध्यान से, ये वाला एंड ये वाला, दे आर गोइंग टू बी व्हाट? सेम. ठीक है, अगर इस वेक्टर की बात करो और इस वेक्टर की बात करो, दीज टू वेक्टर्स आर सिंपली पैरेलली ट्रांसलेटेड. सो दीज टू वेक्टर्स आर सेम. अब चलो इन दोनों वेक्टर की बात करते हैं. ये वाला यहां तक टाइम क्या था? t2 था. और ये था तुम्हारा 0. ये टाइम तुम्हारा क्या है? दिस वॉज योर t1 टाइम. ठीक है. अब आप इस वेक्टर की मैं बात कर रही हूँ. ये वेक्टर कुछ ऐसा है. डन है. सो दिस वेक्टर इज मेड ऑफ टू थिंग्स, one along the x axis, another along the y axis. x axis के along क्या है? देखो ये इतना है, और y axis के along ये इतना है. ठीक है. So how much will be this one? This one will be same as this one, क्योंकि these two vectors are same, right? ये वाला वेक्टर और ये वाला, यहां से ये वाला वेक्टर, ये दोनों सेम है ना. पैरेलली आपने बस इसको स्पेस में ट्रांसलेट किया है, राइट? सो देयर एक्स वाला थिंग is going to be identical. So this is equal to how much? अगर यहाँ से यहाँ जाओ, तो this seems like how much? This is your T2 something. So this should be also equal to how much? This would also equal to T2. I mean मैं ये कहना चाहती हूँ कि these two will be equal. और यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में सपोज कर लो, लेट्स से यहाँ से यहाँ तक जब ये पहुंचा है, आई मीन अप टू t1 टाइम इट्स वेलोसिटी हैज बिकम v1 फर्स्ट पार्टिकल का, एंड अप टू t2 टाइम वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल हैज बिकम v2. सो इस वेक्टर के लिए वर्टिकल लाइन जो है वो क्या है? v2 के बराबर है, और हॉरिजेंटल लाइन तुम्हें क्या दिख रहा है? t2 के बराबर दिख रहा है. सो दिस हॉरिजेंटल लाइन, ये जो भी टाइम है, ये वाला टाइम तुम्हारा क्या होगा? t माइनस t1 होगा, एंड दैट विल बी बेसिकली गेट कंपेयर टू t2, राइट? एंड दिस वर्टिकल लाइन जो कि हमें क्या दिख रहा है? v माइनस वी1. अगर इसको ध्यान से देखो, ये वाला लाइन क्या होगा? दिस माइनस दिस. सो दिस इज v एंड दिस इज v1. सो v माइनस वी1. आप क्या बोलोगे? v माइनस वी1 जो है वो v2 के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप देखो, मैं फिर से सारी चीजें हटाती हूँ, एंड आई वांट यू टू इमेजिन दिस थिंग. व्हाट आई सेड यू इज, दिस इज अ पैरेललोग्राम गेटिंग फॉर्म्ड because slopes are same, right? Slope of this is same as this, slope of this is same as this. This is a parallelogram. So this vector and this vector are identical. ये दोनों वेक्टर क्या है? आइडेंटिकल है. सो इफ दीज टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, किसी भी वेक्टर को किसी भी प्लेन में दो टर्म में ब्रेक कर सकते हो. उसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई होगा. सो इफ दे आर आइडेंटिकल, देयर एक्स एंड वाई कंपोनेंट शुड आल्सो बी आइडेंटिकल, देयर मॉड्यूलस. ठीक है. सो इसका y को फोकस कर लो आप. इसके y को अगर आप फोकस करते हो तो दिस इज v2, और इसके y को अगर आप फोकस करोगे ना, इस वाले वेक्टर का, तो दिस इज योर v माइनस v1. ठीक है. सो v माइनस v1 विल बी इक्वल टू v2, यानी कि v इज इक्वल टू v1 प्लस v2. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दिस. अब आप इसको सॉल्व करो. v इक्वल टू v1 प्लस v2. अब v1 क्या था तुम्हारा? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर टाइम t1. सो दिस विल बी इक्वल टू v1 को आप क्या लिख सकते हो? u, दैट इज 0, प्लस a, दैट वाज फर्स्ट पार्टिकल का. देखो वेलोसिटी क्या था इनिशियली? 2a नॉट. सो यू विल राइट 2a नॉट t1. ठीक है. एंड v2 तुम्हारा क्या हो जाएगा? v2 विल बी a नॉट t2. ठीक है. सो हियर व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? 2a नॉट t1 प्लस a नॉट t2. सो दिस इज इक्वल टू a नॉट 2t1 प्लस t2. अब आप t2 और t1 को क्या लिखा था हमने? t1 was equal to how much? We have calculated it already, but I don't remember the values, so I need to check. चलो चेक करते हैं मिलकर. क्या आया था हमारा? t1 आया था तुम्हारा x नॉट बाई ए नॉट. ठीक है. सो इस वैल्यू को आप पुट करो, x नॉट बाई ए नॉट. सो दिस इज रूट अंडर x नॉट बाई ए नॉट प्लस t2 क्या था तुम्हारा? 2 x नॉट बाई ए नॉट. ठीक है. इट इज दिस इंटू ए नॉट. अब आप इसको सॉल्व करो. अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या दिख रहा है? रूट ए नॉट x नॉट into this will become 2 plus root 2. So this is going to be the answer. So there was a lot to do with the geometry. अगर आप लोगों ने geometry सही से किया होता, you could have got the answer, but it's fine.
I hope you have understood it now. Even if not, you can always let me know in the comment section. If you felt like somewhere I mean, I slipped or I couldn't, then you can let me know. I will try once more. Okay? Thank you. Bye bye. Take care of yourself.